Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am Abdul Rahman and you are watching my YouTube channel. You are welcome to the class. I hope you will be all right. So I don't like to waste your time and I want to go forward to the topic of the day. So let's get started. Today our topic is, I want to remove the previous topic. So our topic for today is future perfect tense. इस ज़माने को उर्दू में फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल कहते हैं. So this tense is called future perfect tense. This tense gives us information or the expression about an event or happening which will be completed in future. एक ऐसे काम के बारे में ख़बर देता है जो कि मुस्तक़बिल में कंप्लीट हो चुका होगा और उसकी कंप्लीशन के बारे में ये है कि वो मुस्तक़बिल के अंदर होगा. तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू लुक द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस. स्ट्रक्चर इसकी बनावट यूँ होगी कि सबसे पहले फ़ाइल आ जाएगा. सेकंडली इमदादी फ़ेल जो कि विल हैव और शल हैव. है. उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा. और अगर सवालिया जुमला हो तो उसमें एंड पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. अगर मनफी जुमला होगा तो विल हैव के बाद नॉट का इस्तेमाल होगा. So the structure for this sentences of this tense will be like this. First of all, we will have to put subject and the sentence, and after that we will have to put the helping verb which is shall have and will have. So remember one thing, that in case a subject is we or I, so with we or I we will have to put shall have. But in case you are putting stress for something, if you use will have, so that is also correct and that is acceptable in these days, because there are being changing in English language, this language transfer from basic to advanced levels. So if you put will have with we and I, so this will be considered correct. And after the helping verb we will have to put third form of the verb. Third form of the verb will be used in this tense, and if the sentence is interrogative, so we will have to put question mark at the end of the sentence, and in case the sentence is negative, so we will have to put not after will have and shall have. So this is a short structure for this tense. Now I want to give a few examples to make you more clear about this tense. So मिसाल की तरफ आप देख लीजिएगा. मिसाल यही है, मैं ख़त
लिख चुका हूँगा, मैं ख़त लिख चुका हूँगा। I shall have written a letter. As you look, I is subject in the sentence, so we have put I in the start of the sentence. After that, shall have, you can look this. This is helping verb, and third form of the verb is used here, and this is object. So first of all, we will have to put I mean subject. After that, we will have to helping verb. After the helping verb, we will write the third form of the verb, and after that object will be put. से आपने मिसाल देख लिए, दूसरी मिसाल आप देख लें। अहमद कराची पहुंच चुका होगा। This is second example. Ahmed will have reached Karachi. अगर रीच की जगह अराइव्ड लगा दें फिर भी ठीक है, क्योंकि इंग्लिश को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसके अंदर बड़ी वैरायटी है। तो ये आपने देख लिए कि सेम उसी तरीके से हमने सब्जेक्ट पहले, विल हैव बाद में, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब उसके बाद, और आगे ऑब्जेक्ट को हमने लास्ट पे लगा दिया है। ये दो एग्ज़ाम्पल्स हैं। एक और एग्ज़ाम्पल आप यहाँ देख लें। ऑफिसर्स इंतज़ार कर चुके होंगे। The officers will have waited. The officers will have waited. Officers इंतज़ार कर चुके होंगे। ये तीन एग्ज़ाम्पल्स आपने देख लिए हैं और इस पे आप गौर कीजिएगा। इस किस्म के और जुमले अपने नोटबुक्स में बना के लिख दीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सो राइट अ फ्यू सेंटेंसेस like these in your notebooks for your practice, and that this will give you more practice. अभी फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल के जो दूसरे जुमले हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं, वो आपको समझा देते हैं। you understand about the structure of these sentences, which is not simple. ऐसा जुमला जो कि सादा ना हो, उसके अलावा वो कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। तो नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस मनफी जुमला। सच काइंड ऑफ सेंटेंस कैरी और डिनाई फॉर समथिंग। इसमें एक इनकार का होता है, किसी काम से इनकार का इजहार होता है। इसकी मिसाल लिख देता हूँ। राजा होमवर्क नहीं कर चुका होगा। So it will be like this. Raja will have not done
होमवर्क। राजा विल हैव नॉट डन होमवर्क, राजा होमवर्क नहीं कर चुका होगा। आप दूसरे एग्जाम्पल की तरफ देख लें। रेल गाड़ी नहीं जा चुकी होगी। The train will have not left. The train will have not left. रेलगाड़ी नहीं जा चुकी होगी। तो ये दूसरी जो एग्ज़ाम्पल है इसको भी अपने पास नोट कर लें। पहली एग्ज़ाम्पल है राजा होमवर्क नहीं कर चुका होगा, राजा विल हैव नॉट डन होमवर्क। एंड सेकंड एग्ज़ाम्पल है द ट्रेन विल हैव नॉट लेफ्ट। आपने देख लिए हैं। अभी इस टेंस में जो और जुमले हैं उनमें इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है। नाउ लुक हाउ टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इन दिस टेंस। इन interrogative sentences सवालिया जुमले। तो सवालिया जुमलों के लिए सबसे पहले जो बनावट है वो यूँ होगी कि हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले जुमले के शुरू में रख लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगा और आखिर पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ कि क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात मैं ख़ुद ही लगाना भूल जाता हूँ। सो देयरफॉर आई एडवाइस यू टू पुट क्वेश्चन मार्क एट ऑल। So structure for interrogative sentences will be like this. First of all, we will have to put helping verb at the beginning of the sentence. Helping verb. After that, we will have to put subject, and subject will be followed by third form of the verb. At the end of the sentence, we will have to put question mark. So we will get our sentence completed by this way if you adopt this kind of structure for interrogative sentences in future perfect tense. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर अगर हम यही बनावट इख्तियार कर लें, सबसे पहले हेल्प वर्ब को जुमले के शुरू में रख लें, उसके बाद सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और चूँकि जुमला सवालिया है सो वी विल हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ए फ्यू एग्जांपल्स आई वांट टू गिव यू फॉर मेकिंग यू मोर क्लियर। आपको मज़ीद समझाने के लिए मैं 2-3 एग्ज़ाम्पल्स और दे देता हूँ। क्या लड़के सबक याद कर चुके होंगे? विल को हमने सबसे पहले पुट कर दिया, उसके बाद सब्जेक्ट को, उसके बाद
हैव अपनी जगह पे आ गए, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब उसके बाद हमने लगा दिए। आप याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ विल को सबसे जुमले के शुरू में रखेंगे और हैव जो है ना वो बाद में सब्जेक्ट के बाद हम लगा लेंगे। तो ये आप एग्ज़ाम्पल को देख लें, इसी एग्ज़ाम्पल से आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। विल द बॉयज़ हैव लर्नड द लेसन, क्या लड़के सबक याद कर चुके होंगे। तो ये आपने एक एग्ज़ाम्पल देख लिए, दूसरे एग्ज़ाम्पल की तरफ भी देख लें। वो लेक्चर दे चुका होगा, क्या वो लेक्चर दे चुका होगा। will he delivered will he delivered will he delivered lecture, क्या वो लेक्चर दे चुका होगा। तो दिस सेंटेंस आल्सो कैरी a question because this is, क्या वो लेक्चर दे चुका होगा। यहाँ पे आप देख लें, दूसरी एग्ज़ाम्पल की तरफ आप देख लें। विल ही हैव डिलीवर्ड, विल ही हैव डिलीवर्ड लेक्चर, विल ही हैव डिलीवर्ड लेक्चर, क्या वो लेक्चर दे चुका होगा। दूसरी एग्ज़ाम्पल आपने देख लिए। तो इस किस्म की दूसरी मिसालें अपने आप को मज़ीद क्लियर करने के लिए अपने नोटबुक्स के अंदर लिख लें एंड हैव प्रैक्टिस ऑन देम टू अंडरस्टैंड वेल। सो राइट अ फ्यू एग्जांपल्स लाइक these in your notebooks, and these examples and this practice will make you more clear about interrogative sentences in this tense. So now I want to explain that how we can make a sentence which is interrogative and negative at a time. हम मनफी और सवालिया जुमला कैसे बनाएंगे। A sentence that is negative and interrogative at a time. So how we will create such kind of sentences in this tense. इस टेंस के अंदर हम ऐसे जुमले जो कि मनफी भी हो और सवालिया भी हो. That sentences that carry positive sense and negative sense is called negative and interrogative sentence. मनफी और सवालिया जुमला उसको कहते हैं. इसकी बनावट कुछ यूँ होगी. बनावट, बार बार बनावट पे इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि बनावट ही एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको समझ आ गई तो फिर आप इस किस्म के जुमले लिख सकते हैं, बना सकते हैं, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो ये बार बार मैं इसीलिए सबसे पहले बनावट पे ज़ोर देता हूँ. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि विल को या शल को जुमले के शुरू में लिख देंगे. उसके बाद सब्जेक्ट, तीसरे नंबर पे हम हैव नॉट लगा देंगे और चौथे नंबर पे थर्ड फॉर्म लगा देंगे और आखिर पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. सो द स्ट्रक्चर फॉर दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस विल बी लाइक दिस. वी विल हैव टू पुट हेल्पिंग वर्ब एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. shall, will,
शल विल को हम लिख देंगे जुमले के शुरू में. वी विल हैव टू पुट शल और विल at the beginning of the sentence. After that we will put subject. After the subject have not will be added, and after the have not we will have to put third form of the verb, and at the last we will have to put question mark as must. Never forget it to put. If you forget it, so your sentence will be considered wrong, and you can't claim that my sentence is correct because you have forgotten the putting of a question mark. So ये मिसालें हैं, ये इसकी बनावट है, वो अपने पास नोट कर लें. Now I want to give a few examples for your easiness. ये चंद मिसालें आप देख लें. क्या उस्ताद नसीहत कर चुका? क्या उस्ताद नसीहत नहीं कर चुका होगा? Will the teacher have not advised? विल को हमने सबसे पहले रख दिया, उसके बाद उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, हैव नॉट ने उसको फॉलो किया, और आखिर पर हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दिए जो कि नसीहत के लिए इस्तेमाल होता है. क्या उस्ताद नसीहत नहीं कर चुका होगा? विल द टीचर हैव नॉट एडवाइज्ड. इसके अंदर नफ़ी भी है और इसके अंदर सवाल भी है. सो दिस सेंटेंस हैज़ will and have not. So will is for question and have not is for negative. क्या मेहमान सिर नहीं कर चुके होंगे? Will the guest have not visited? Will the guest have not visited? आपने ये दूसरी एग्जांपल भी देख लिए हैं. So dear students, I hope you will find this video useful for yourself. If you are learning something, so it means this video is useful for you, and if you are not learning something, so it means this video is useless for you. So make this video useful for yourself, have practice on these examples, and keep on learning, keep on reading the books, and keep on boosting your vocabulary in this regard. So if you find this video useful for yourself, please share this video with your friends and subscribe my channel for new contents. Let me know the details and your questions in the comments box. Thank you so much. Take good care of yourself. See you. Bye bye.